Yes, good afternoon, everyone. Am I audible to all? Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Saurabh. अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स लेबोरेटरी ये हमारा फर्स्ट ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है. So from part 2, group A, we have covered polygon filling as well as line clipping algorithm. So this is your third assignment. Can you see on the screen? This is your third assignment. एक 2 मिनट वेट करते हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं. Okay, this is third A. Write C++ program to draw the following pattern. Use DDA line and Bresenhen's circle drawing algorithm. Apply the concept of encapsulation. Okay. So encapsulation is one of the feature of C++ language. Already we studied what is encapsulation, and in this program we are going to use DDA line drawing algorithm and Bresenhen's circle drawing algorithm. तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम यूज करके आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है, and using circle algorithm you have to draw this inner side circle as well as outer side circle. तो पहले हम सिंपल प्रोग्राम लेने वाले हैं, हाउ टू ड्रॉ DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम. So before going to start this programming, actually I want to show you the PPT that we studied during the theory theory time of first unit. Okay, computer graphics first unit. So आपको जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है वो प्रोग्राम अल्गोरिदम के बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना है. और अभी C++ का आपको पता हो गया होगा कि DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम हम कैसे ड्रॉ करते हैं. थियरी असाइनमेंट में भी मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था. यूजिंग DDA line drawing algorithm, draw the line and endpoints are given to you. Points are given to you. Just a minute. Wait for a second.
Am I audible? Okay. For DDA line drawing algorithm, there are some steps. So what are that algorithm step? 1. Accept the two endpoints. तो हमें प्रोग्राम में क्या लिखना पड़ेगा? सी आउट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. एंटर x1 y1, एंटर x2 y2. तो जो भी आप x0 y0 या x1 y1 ऐसे इनपुट देना है, तो इनपुट आपको पता है क्या देना है, टू एंड पॉइंट्स. Then step 2, calculate the horizontal and vertical difference. So how we are going to calculate horizontal and vertical difference between two endpoints using the delta x. So ये formula भी use करना है, that is x1 minus x0 delta x, and y delta y means y1 minus y0. अगर y2 minus y1 लिया है तो y2 minus y1. Okay. Then step 3, based on the calculated difference in step 2, ये जो यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लिया है, identify the number of steps to input to put pixel. तो कंडीशन क्या चेक करना है हमें? व्हाट इज द कंडीशन फॉर DDA line drawing algorithm? If delta x is greater than delta y, then we need more steps in x coordinate, otherwise in y coordinate. So हमें क्या करना है? If delta x is greater than delta y, length equal to absolute value of delta x लिखना है, ये फॉर्मूला यूज करना है. Else length is equal to absolute delta y. ओके. तो यही एल्गोरिथम के स्टेप्स हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. एक्स इंक्रीमेंट निकालना है. How we are going to use this x increment? This is the formula, delta x upon float of length. Okay. Using all these steps, we are going to implement this DDA line drawing algorithm. To put pixel by successfully incrementing x and y coordinates accordingly, the complete the drawing of line. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ मैं, सिर्फ 30 मिनट्स. ये प्रोग्राम का थियरी ऑलमोस्ट आपको हो चुका है. तो x पॉइंट कैसे निकालेंगे? x प्लस x इंक्रीमेंट. तो ये जो x है वो नेक्स्ट पॉइंट है. लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड पॉइंट टू सेकेंड एंड पॉइंट, और उसके इन बिटवीन के पूरे पिक्सल का हमको हाईलाइट करना है. तो नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे करते करते हम ड्रॉ करते हैं लाइन. सो x इक्वल टू x प्लस x इंक्रीमेंट, y इक्वल टू y प्लस इंक्रीमेंट. ये पुट पिक्सल एक फंक्शन है. ओके. ये इनबिल्ट फंक्शन है पुट पिक्सल. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कॉमा कलर ऐसे देते हैं हम. ठीक है. और स्टेप 7 स्टॉप. तो यही हम स्टेप्स प्रोग्राम में देखेंगे. सो दिस इज योर ग्रुप A थर्ड असाइनमेंट, DDA line drawing algorithm. So you have to include all these header files, graphics, then IO stream, math.h, क्योंकि हम calculations करने वाले हैं इसमें. Then bits oblique std c++, ये एक standard header file है C++ के प्रोग्राम रन करने के लिए. Then using namespace std as it is, main function हमारा इसमें क्या क्या दिया है, वेरिएबल्स x, ये सबसे सिंपल प्रोग्राम ले रही हूँ मैं CG का. तो x एक्सिस y एक्सिस लगने वाले हैं, इसलिए वो x1 y1 x2 y2. देन डेल्टा x डेल्टा y ये भी कैलकुलेट करना है, और स्टेप नाम का वेरिएबल भी लिखा है. See here, enter the value of x1 and y1. तो x1 y1 इनपुट देना है.
एंटर द वैल्यू ऑफ x2 y2, सेकेंड एंड पॉइंट देना है, तो दोनों एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमें इनिट विंडो, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है, मतलब आपका आउटपुट ग्राफिक्स का जहाँ पे आता है वो विंडो है ये। तो इसमें क्या 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 पैरामीटर्स एटलीस्ट होने चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इंट विड्थ, इंट हाइट, देन कॉन्स्ट कैरेक्टर, विंडोज बीजीआई, लेफ्ट राइट टॉप, बुलियन, ये सब। बेसिकली सिर्फ इतना लिया तो भी चलेगा, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। सो ओनली 600 700 विड्थ एंड हाइट ऑफ द ग्राफिक्स विंडो। उसके बाद हमने dx कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा एक्स, x2 माइनस y1, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, इसलिए abs ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये यूज किया है। एल्गोरिथम में हमें क्या दिया था? डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा वाई है, तो स्टेप इक्वल टू dx पकड़ना है। अगर नहीं है तो स्टेप इज इक्वल टू डेल्टा वाई करो, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का ये फॉर्मूला है। देन x इज इक्वल टू x1। अभी लेटेस्ट x क्या है? मेरा x1 है, और अभी मेरा करंट y वैल्यू कौन सी है? y1 है, ओके। तो ये हमें एक वेरिएबल लगता है, int I इक्वल टू 1, while that I is less than or equal to step। स्टेप मतलब हमारा जो भी यहाँ पे डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई होता है वो स्टेप होता है। तो हमें क्या करना है? पुट पिक्सल एक्स कॉमा वाई 5। 5 क्या है यहाँ पे? कलर है। मैंने बोला था कि पुट पिक्सल एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसके पैरामीटर्स 3 होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई एंड इंट कलर, ओके। सो x is equal to x plus dx, y is equal to y plus delta y, i is equal to I plus 1। और ये डिले क्यों दिया है? तो हमें लाइन कैसे ड्रॉ होने वाली है वो धीरे धीरे पता चले स्लो मोशन में, तो इसलिए हम डिले यूज करते हैं। और ये हमारा जो रहता है लास्ट में GCR, ये याद ही रखो, GCR, दैट इज G फॉर गेट ch, C फॉर क्लोज ग्राफ एंड R फॉर रिटर्न। तो गेट ch से हमें वो इमेज वहां पे दिखेगी। क्लोज ग्राफ हमने इनिट विंडो किया है, तो ग्राफ को क्लोज करना पड़ेगा, देन रिटर्न 0। मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती हूँ, कंपाइल, एंड देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, रन। तो पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ x1 y1, x1 y1। दिस इज x1 y1, x2 y2 आप ले सकते हो, 500 600, ओके। जब मैं एंटर की प्रेस करती हूँ, सी दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और जो हमने एंड पॉइंट दिया है वहां तक ये लाइन ड्रॉ होती है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल मैंने थियरी टाइम भी दिखाया था। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, ओके गाइस। तो यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। जनरली हमारा एक्स एक्सिस कंप्यूटर पे क्या रहता है? इस साइड में एक्स एक्सिस रहता है, टॉप साइड में। और जब हम मैन्युअली ड्रॉ करते हैं हाथ से,
तो एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे होता है और एक्स एक्सिस दिस टाइप। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में हमें एक्स एक्सिस ये होता है हमारा, और वाई एक्सिस ऐसे होता है। दिस इज वाई एक्सिस। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस and this is y-axis. तो 200 300 मतलब यहाँ ये हमारा 200 300 पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस ऐसे है ना, यहाँ पे ऊपर से हॉरिजेंटल है, तो ये यहाँ पे 200 होगा। ओके, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 300 है, तो यहाँ से ये पॉइंट 300 पर होगा। और 500 600 मतलब 500 एक्स एक्सिस यहाँ से नीचे तक यहाँ पे कहीं पे 500 होगा, और 600 मतलब वाई एक्सिस पे 600 यहाँ पे होगा। तो ऐसे ये लाइन ड्रॉ होगा। और ब्रेसेनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम भी वैसे ही है, जैसे कि इसमें ये स्टेप्स हमने फॉलो किए थे। Bresenham's line drawing algorithm. So these are the steps in Bresenham's line drawing algorithm that read the line endpoints. यहाँ पर भी हमें dx कैलकुलेट करना है, और delta x2 minus x1 and its absolute value. Delta y means y2 minus y1. ये हो चुका है थ्योरी में फर्स्ट यूनिट में। फोर्थ स्टेप क्या है? इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ एरर और डिसीजन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल लेना पड़ता है हमें यहाँ पे, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, और इनिशियलाइज काउंटर आई इक्वल टू 0 एंड देन प्लॉट एक्स कॉमा वाई। हमें कब तक प्लॉट करना है? while e is greater than or equal to 0। जब ये e जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, y इक्वल टू वाई प्लस 1 इक्वल टू ई माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स। तो इसी फॉर्मूले में हमने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। दिस इज द सेकेंड line drawing algorithm, that is Bresenham's line drawing algorithm. ओके, यहाँ पे e के बदले हमने यहाँ पे p लिया है। ओके, p वेरिएबल लिया है। So again error is there, then x0 y0, these are the coordinates, x1 y1, these are the coordinates. Then enter coordinates of first point, of second point, उसके बाद हमारा विंडो डिस्प्ले होगा। देन ड्रॉ लाइन फंक्शन, देन डिले। तो ये ड्रॉ लाइन फंक्शन जो है इस ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है यूजिंग द एल्गोरिथम स्टेप्स। तो x0 y0 ये कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, हमें डेल्टा x डेल्टा y लगता है, फिर डिसीजन पैरामीटर लगता है p। So we are putting this value in this formula. Okay, according to the algorithm. Now execute, compile, no error, no warning, execute, run. So enter coordinates of first point 300 and 500. Then enter the coordinate second point, देंगे 400 600. So this is our Bresenham's line drawing algorithm. ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट्स है 300 500 500 मतलब ये y एक्सिस पे 500 यहाँ पे होगा, तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई है। ओके गाइस,
तो ये दो प्रोग्राम हमने अलग अलग किए हैं, डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम एंड ब्रेसेनेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। तो मैं आपको एक टास्क देने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम है। ओके, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स थे, वो एरर्स निकाले हैं, फिर भी एक छोटे से एक दो एरर्स हैं, वो आपको रिड्यूस करना है। एंड इन दिस प्रोग्राम वी आर यूजिंग both programs, both algorithms, that is DDA line and precedence line algorithm together. So where is main function? तो यहाँ पे वेलकम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम ऐसे प्रिंट होगा, देन डीडीए एल्गोरिदम एंड ब्रेसेनेम्स एल्गोरिदम, ये चॉइसेस आपको दिए जाएंगे। तो एंटर योर चॉइस, और ये आपका प्रोग्राम है। जो आप केस 1 पे डीडीए एल्गोरिदम प्रिंट होगा और केस 2 पे ब्रेसेनेम्स एल्गोरिदम प्रिंट होगा। तो मैं ये प्रोग्राम आपको चैट बॉक्स में देने वाली हूँ, ये आपको एग्जीक्यूट करना है। स्टोर करके रखो आप 20 लाइन्स, कंट्रोल सी। फर्स्ट 20 लाइन्स, देन 20 to 40, किसी एक स्टूडेंट को व्हाट्सएप कर दूं क्या, चलेगा ना? ओके, ओके मैम। एक मिनट। क्योंकि ऐसे आपको भी टाइम कॉपी पेस्ट करने को टाइम लगेगा, ठीक है। और लाइन ये हमारा लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम हो चुका है। सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम आपको करना है। सिलेबस में सर्कल भी यूज करना है। अभी सिर्फ हमने लाइन ड्राइंग देखा है, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी थ्योरी पता है। उसके लिए भी हम लोग दो एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, ब्रेसेनेंस सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम एंड मिड पॉइंट एल्गोरिदम। तो मिड पॉइंट एल्गोरिदम मैंने आपको शो किया था, ओपन मिड पॉइंट एल्गोरिदम थियरी जब हम स्टडी कर रहे थे तब मिड पॉइंट एल्गोरिदम लिया था। तो उसमें क्या होता है कि हर एक क्वाड्रेंट को मतलब ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे अ, एक सर्कल को 8 पीसेस में डिवाइड करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट, कंपाइल, एग्जीक्यूट, रन। ये पहले प्रोग्राम से डिलीट करना पड़ेगा, एक मिनट। ये बहुत सारे ओपन है यहाँ पे, क्लोज, क्लोज। इसके पीछे विंडो होगा। एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल। तो कोऑर्डिनेट का सर्कल का सेंटर हमें देना है, सपोज 50। नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा मैंने प्रैक्टिकल आवर्स जो थ्योरी आवर्स थे हमारे, तब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था। जस्ट अ मिनट, अगेन इसको मिड पॉइंट का दूसरा था क्या, मिड पॉइंट करके एक ही प्रोग्राम था। इंटर सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, सेंटर कोऑर्डिनेट, ओके। सेंटर का कोऑर्डिनेट देना है, नॉट रेडियस।
तो पहले सेंटर सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स देते हैं, जैसे कि 300 200. ओके, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस 60, फिर एंटर करो तो आपको यहाँ पे ये मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे उसका थ्योरी मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था। तो ये जो है ये ब्लैक कलर से प्रिंट हुआ है, इसलिए ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखता है। तो एक क्वाड्रेंट जो है उसको 0 कलर कोड दिया है, किसी को रेड दिया है, किसी को येलो दिया है, किसी को ब्लू दिया है, व्हाइट, रेड, ग्रीन एंड देन रेड अगेन। तो ये सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम मिड पॉइंट का है, लेकिन हमें सिलेबस में बोला है ब्रेसेनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम और डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम यूज करना है। सो this is I explained you DDA line drawing and Bresenham's line drawing algorithm only. तो आपको ब्रेसेनेम्स सर्कल यूज करके इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, और आउटपुट कैसे लेना है, प्रिंट स्क्रीन करके आउटपुट लेना है। ओके गाइस, Can I ask you? ये प्रोग्राम में किसी एक स्टूडेंट को देने वाली हूँ, व्हाट्सएप करने वाली हूँ। वो मतलब अनऑफिशियल ग्रुप पे मैं आपको सेंड करके उसका एरर निकालना है। ठीक है, in this example there are two algorithms, Bresenham's line drawing and DDA line drawing algorithm. मैम Yes, मैम ये जो अभी अपन ने सीखे कोड्स वगैरह सी प्लस प्लस के, मैम तो अब इसके जब पेपर्स होंगे तो अब इसका एमसीक्यूज कैसे आएंगे, मतलब एरर डिटेक्ट करने में आएंगे क्या या फिर क्या आएगा? प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी एग्जाम में बोल रहे हो? हाँ मैम। प्रैक्टिकल एग्जाम ना? हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी और थ्योरी एग्जाम दोनों होगी ना इसकी? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स का बोल रहे हो ना? कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो यूनिट पे डिसाइड होगा, यूनिट 1 यूनिट 2, इन सेम में दो ही यूनिट्स आएंगे, यूनिट 1 यूनिट 2। ठीक है, और मैम और यूनिवर्सिटी को प्रैक्टिकल एग्जाम अगर इसका ऑफलाइन होता है तो आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। चिट्स दिए जाते हैं, टोटल 14 असाइनमेंट्स हैं। तो सब्जेक्ट टीचर क्या करता है कि 14 चिट्स बनाता है और एक बैच होती है 12 स्टूडेंट की। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको चिट्स दिए जाते हैं या फिर सीट नंबर वाइज। तो 201 जिसका नंबर होगा वो 14 चिट्स में से एक चिट उठाएगा और उस चिट में दो प्रोग्राम्स होंगे, ऑप्शंस दो होंगे। तो आउट ऑफ दैट टू, दैट स्टूडेंट 201 सीट नंबर हैव टू परफॉर्म ओनली वन प्रैक्टिकल। तो दो प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम उसको करना होता है, मतलब हर एक चीट में दो दो प्रोग्राम्स सब्जेक्ट टीचर देगा। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ इसका तो हम ऑनलाइन एग्जाम में इतना स्ट्रिक्ट नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि किसी सबके पास एग्जीक्यूट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस असाइनमेंट मैं क्या पूछूंगी, ये जो अगर डीडीए लाइन ड्राइंग है और ब्रेसेनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है, तो इस प्रैक्टिकल को मैं ये पूछ सकती हूँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ the names of algorithm
we are using for line drawing, what is the long form of DDA, digital differential analyzer. तो ये इस प्रैक्टिकल के ऊपर रहेंगे, लेकिन हम और भी प्रैक्टिकल्स ओरली पूछ सकते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल एग्जाम रहेंगी वो एक टाइप ऑफ वाइवा रहेगा। हाँ, अभी तक तो हमने वैसे ही किया है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम पूछते हैं कि पहले मतलब सीट नंबर 201 उसको हम पूछेंगे कि तुम ये प्रोग्राम करने में इंटरेस्टेड हो या क्वेश्चंस पूछो, हम पूछ सकते हैं हम लोग। तो अगर वो बोला कि नहीं मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ, तो उसको प्रोग्राम करने के लिए देंगे और वो उसका आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, ऐसे भी किया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना था, तो आपने ओरल पूछा। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बोल रहे थे वैसे, इसलिए ऑप्शन दिया जाता है ऑनलाइन एग्जाम में। इफ यू वांट टू डू कोडिंग यू कैन परफॉर्म, अदरवाइज यू कोडिंग भी करने के बाद भी उसको ओरल पूछे ही जाएंगे ना, कैसे किया है, क्या स्टेटमेंट यूज किए हैं, क्या इसका लॉजिक क्या है, और फिर डीडीए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जाता है। मीन्स कोडिंग प्लस ओरल भी होगा उसका, ऐसे नहीं कि प्रोग्राम रन कर दिया और छूट गया, ऐसे नहीं। तो कॉपी पेस्ट भी किया होता है ना, इसलिए थोड़ा तो ओरल क्वेश्चन पूछेंगे ही। सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि आपको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट भी करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पे। मैम और चांसेस क्या है कि ऑफलाइन होंगे प्रैक्टिकल्स? चांसेस क्या बोल रहे हैं? यस मैम, चांसेस क्या है कि प्रैक्टिकल्स ऑफलाइन होंगे, क्योंकि एसएसपीयू के भी गाइडलाइंस आई है कि शायद से ये सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर से फिर स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। हाँ, ऑफलाइन। तो मतलब मुझे तो लगता है कि जब तक एसपीपीयू से जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे वैसे ही होगा। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन बोला है तो लेना ही पड़ेगा ऑफलाइन। लेकिन अभी तो वैसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन का ही हमें मतलब दोनों तरह से प्रिपेयर हो आप। क्या सिचुएशन उस टाइम होगी ये हम लोगों को पता नहीं। ठीक है, और इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। प्रैक्टिकल जो भी होगी, ऑफलाइन भी हुई तो भी एक्सटर्नल इंटरनल रहता है, और ओरल हुआ तो भी एक्सटर्नल इंटरनल होता है। एक सब्जेक्ट टीचर और दूसरा एक स्टाफ रहता है कॉलेज का ही, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ग्रुप ए का तीसरा प्रोग्राम था हमारा। ठीक है, ये आप खुद इम्प्लीमेंट करके देखो, मैं तीनों भी कोडिंग व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, और अभी क्या एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, जस्ट अ मिनट, आपको सिलेबस देख के एग्जाम फॉर्म भरना है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मतलब क्या उसको मेंशन करें। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको आपको मिड सेम एंड सेम एग्जाम है, उसको टर्म वर्क प्रैक्टिकल नहीं है। फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर उसको भी मिड सेम एंड सेम एग्जाम है। ये सबको मिड सेम एंड सेम एग्जाम है। अभी रह गया प्रैक्टिकल, तो 3 प्रैक्टिकल्स है हमारे, डीएसएल, ओपीएल एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैबोरेटरी, डेल लैब। तो ये तीनों को भी टर्म वर्क है। सो फॉर ओपीएल, ओपीसीजीएल, डीएसएल एंड डेल, टर्म वर्क को टिक करना है। और प्रैक्टिकल सिर्फ 2 सब्जेक्ट का है। डेटा स्ट्रक्चर लैबोरेटरी का प्रैक्टिकल है 50 मार्क का, और ओपीसीजीएल का प्रैक्टिकल है 25 मार्क्स का। और बाकी ये बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है टर्म वर्क, और ऑप्शन है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल मॅम तो टिक करायचा ऑप्शन नाहीये फॉर्म मध्ये। हाँ मॅम प्रैक्टिकल फक्त एग्जाम एकच का नहीं टिक आहे।
क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम मैम नहीं है उसको, सिर्फ टर्म वर्क है. So for BCS, you have to select term work, and for humanity and social science, you have to also select term work. और ऑडिट कोर्स जो है उसका जो कोडिंग है, कोर्स कोड 210251, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है. और उसमें आपका जो सब्जेक्ट है ऑडिट कोर्स 3 में, उसमें कुछ ऑप्शन है क्या? यस मैम, मेरे पास एक 5 एग्जाम ऑप्शन फॉर्म है। है, ये देखो यहाँ पे. हाँ, तो ये जो है ऑडिट कोर्स का ही है ना ये? क्या है ये? ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट का है ये फॉर्म. तो इसके लिए हमारा कोर्स कोड क्या है? 210251. और मैंने बोला था सब लोगों को एनवायरमेंटल स्टडीज ये सिलेक्ट करो, और जिसको नहीं करना है वो दूसरा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. मैम एक और ये था कि जो ऑडिट कोर्स रहेगा उसके रिगार्डिंग जो आपने मतलब जैसे इसमें बताया था, अ, हम्म जब ऑडिट कोर्स का था तब कि अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज लिया तो आपके पास रिपोर्ट रेडी है एंड वही प्रोवाइड करेंगे करके। पर अगर बाकी अगर कुछ लेते हैं जैसे लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेजेस, तो हम्म. उसका हमें खुद ही पढ़ के रिपोर्ट तैयार करनी है ना? हाँ, आपको खुद ही करना है जो मतलब रिपोर्ट एक बनाना है. ऑडिट ऑडिट हम्म. कोर्स जो रहेगा वो जस्ट एक कॉलेज की तरफ से इनिशिएटिव रहेगा कि बच्चों ने कुछ अलग करना चाहिए, वो भी खुद के दम पे, लाइक को करिकुलर। यस यस, वो आप बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने कुछ नहीं किया है ये और एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेक्ट करो, और बाकी जिन लोगों ने दूसरा कुछ ऑडिट कोर्स लिया है उनको खुद का अपना अपना रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. और उसमें हम लोग कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ मैम और वो उसमें. ऑडिट कोर्स की जो रिपोर्ट रहेंगी वो इस यूनिवर्सिटी को जाएंगी या कॉलेज मार्किंग देगा उस पे? नहीं, ये हमारे पास सबमिट करना होता है क्लास टीचर के पास. ओके। और वो हम ऐसे स्टोर करके रखते हैं एक फोल्डर में, जिप रहेगा एक, और किसी का फिर वैसे यूनिवर्सिटी तो मांगती भी नहीं हो रिपोर्ट, एक एक्टिविटी के तौर पे रखना रखना चाहिए, ऐसा है. तो इस लेकिन मैम आपका सबमिट होना जरूरी है, और एग्जाम फॉर्म में उसको टिक करना जरूरी है क्योंकि उसके क्रेडिट्स हैं. हॅलो मॅम, 25 मार्क्स है ना शायद उस पे? मॅम मी फॉर्म भरलेला बट टिक करायचा ऑप्शनच नव्हता. कुठे? फॉर्म माझा बरोबर आहे असेल का? एक एक फॉर्म भरलेला माझ्या समोर आहे इथे, आउट इथे स्क्रीन वरती, ऍक्च्युअल स्टूडेंट साइड. हो मॅम, असाच होता. तो ये देखो, ये जो स्टूडेंट है उसने ये ऑडिट कोर्स में टर्म वर्क को टिक नहीं किया है यहाँ पे, तो उसको मैंने मैसेज सेंड कर दिया है कि टर्म वर्क को मॅम टिक फॉर्म करो. एडिट करता करता येत नाही. मी ट्राय केलेलं बट एडिट नाही होत फॉर्म. आपने फाइनल सबमिट कर दिया क्या? फिर वो प्रिंट प्रीव्यू आता होगा ना पहले, क्योंकि ये सब स्टूडेंट साइड के एक्टिविटीज हैं, इसलिए मुझे ज्यादा एडिटचा इतना मतलब. ऑप्शन नव्हता मॅम तिथे. सुमित, ते जेव्हा रिजेक्ट होईल तेव्हा परत येईल ना, तेव्हा एडिट करून घेशील. ओके. तसंही करता येईल एक ना? वेळा ठीक आहे. सरांशी बोलून घेशील. हम्म. ठीक है गाइस, अभी डीडीए लाइन ड्राइंग और ब्रेस एंड हेम्स का मैं कोड आपको सेंड करने वाली हूँ. 3 कोडिंग सेंड करने वाली हूँ, डीडीए अलग, ब्रेस एंड हेम्स अलग, और डीडीए ब्रेस एंड हेम्स टुगेदर. तो ऐसे 3 कोडिंग है, उसको आपको यूज करके ये असाइनमेंट परफॉर्म करना है. अभी तक मैंने आपको बोला नहीं था कि ऐसा कुछ सब मैं करके ही देती थी,
लेकिन ये सिंपल है, ये आपको करना पड़ेगा अभी। देखो कैसे करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए यूजिंग DDA लाइन एंड BrushNM सर्कल। ओके गाइस, फिर आज का न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड्स ब्रेकिंग न्यूज़। 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। मैं कोड देती हूँ आपको। यस गाइस, एनीवन इंटरेस्टेड? स्टॉक मार्केट का पता है मैम? यस सार्थक बोलो। मैम बहुत से क्या है फिर? कंपनीज के आज शेयर्स गिर गए क्योंकि साउथ अफ्रीका में न्यू वेरिएंट आया एंड पार्शियल लॉकडाउन्स की ये हो गई है न्यूज़ फ्लैश की। महाराष्ट्र में पार्शियल लॉकडाउन्स एंड गाइडलाइंस, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के शेयर्स गिर गए आज। ओके ओके। निफ्टी गिरा आज। हाँ, अजून? क्रूड ऑयल का मैम $10 पर बैरल से भाव गिरा। रिपीट अगेन आदित्य। क्रूड ऑयल का 82 डॉलर्स था भाव पहले, और कल परसों 70 to 72 डॉलर आया एक बैरल का। ओके ओके। और एनीथिंग इन महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज़? ओके, thank you guys, thank you very much. Today's attendance code is 05. Thank you. मॅम अटेंडन्स कोड फक्त 05 नाही टाकावं लागत ना? CO 0105 असं टाकावं लागेल ना? कारण की मी प्रत्येक वेळेस 05च टाकतो.